welcome patients to this webinar. First of all, I'd start with wishing you a belated happy World Myositis Day. It's nice to see you all here. Hope this session will help us out. Before going into the webinar's details, I just wanted to go over a few details of our organization as well. We've come a long ways. We started back in March 2023, and right now we've got like a huge number of patients. It reaches about 300 patients that are registered with us, about 60 volunteers. We've had great progress. We've got regular patient webinars. I think a lot of patients are regulars for us, Mr. Ajay Shukla, Mr. Prashant sir, Ms. Shelley, Mr. Naresh. We've got regular physician webinars. We've also forayed into academics with a few research papers on the way. And we are very proud with the progress we've made, and we look forward to your continued support and go forward with it. I'd like to give over to Kshitij, if you'd like to take over. Yeah, sure. So before starting the webinar, I would like to give a brief introduction for our speaker today. Thank you so much, Dr. Burma, for being here with us and doing this talk. So Dr. Burman is an associate professor of pediatrics and serves as the co-director at the Pediatric Sleep Evaluation Center in UPMC's Children's Hospital of Pittsburgh in Pennsylvania. She has been instrumental in disseminating sleep medicine knowledge regionally, nationally, and internationally via uh, disseminating sleep medicine knowledge regionally, nationally, and internationally via several invited talks, media interviews, and public educational forums. Her focus areas include harnessing the power of sleep for improved daytime performance and physical and mental well-being. Today, she has specially curated a talk for us to discuss the importance of sleep for myositis patients and also talk about various sleep problems faced by our patients. Dr. Burman, you can take over. Thank you. Thank you so much, guys. It's my pleasure to be here today. You guys are doing a great work with this organization and helping the patients with myositis, as we know that a lot of these illnesses are not very well known, and spreading awareness is actually really, really helpful on these fronts. As opposed to that, sleep is very well known. We all know about sleep. We all sleep. Still, the public health education and awareness about how we can sleep well seem to be lacking. So what I'm going to do today is talk about sleep, why it is important, and what we can do, little things that we can do to help with our sleep. I will try to keep this talk in Hindi as well as English, but at any point in time, अगर आपको लगे कि इंग्लिश ज़्यादा हो रही है या हिंदी ज़्यादा हो रही है या मुझे रिपीट करना है अपने आप को, तो I will be happy to do that. Now, let's talk about, मुझे कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास एक और ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी होनी चाहिए कि मुझे स्लीप क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, पर मेरे पास नहीं है कोई स्टोरी. मेरे पास सिर्फ लोगों की स्टोरीज है जो बताती हैं कि अगर आपको अच्छी स्लीप नहीं मिलती है, इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, व्हाट कैन बी द हार्मफुल इफेक्ट्स, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं अगर आपको एक अच्छी स्लीप नहीं मिलती है रात में या दिन में. So what we are going to talk about today is deal with a little bit of what is normal sleep. हम किसको normal sleep बोलते हैं? We will talk about the effects of poor sleep. We will talk about कि myositis के patient में what is special about sleep in myositis patients. We will talk about actions that can be taken to improve sleep. So क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, हमारी sleep खराब है, पर क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या जनरल लोग कुछ कर सकते हैं? क्या मायोसाइटिस के लोगों को स्पेशली कुछ करना चाहिए? ये सब चीज़ें हम इसमें आज बात करेंगे. यहाँ पे मैंने एक लिंक डाली है और क्यूआर कोड है. इफ यू स्कैन द क्यूआर कोड, it will take you to a link that will give you a poll to see how much sleep you get in a 24-hour period or at night. So अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज उस पे जाके आप अपना पोल दे सकते हैं. Now, let's talk about sleep. क्या है नींद? हम सब सोते हैं. नेचुरल है, अपने आप आती है, किसी के को कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए. ऐसा हमें लगता है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता और नींद आ जाती है, पर जिनको स्लीप की प्रॉब्लम्स होती है उनसे पूछिए क्या वो नेचुरली आ जाती है? शायद नहीं आती है.
इसेंशियल है, इट इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। बिना जिस तरह से कुछ चीजें जो हमारे पास फ्री में मिलती है, पानी, साफ पानी और खाना, उसी तरह से नींद हमें फ्री में मिलती है, पर क्या हम उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर पाते हैं? इट इज एसेंशियल टू सर्वाइवल। एक हमारे जीवन के लिए अगर स्लीप मिसिंग हो तो हमारी जो लाइफ स्पैन है, हम कितना टोटल नंबर ऑफ इयर्स हम जीते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और रिवर्सिबल है, एक बार आप साथ सोते हो तो उठ जाते हो, अनलाइक सम थिंग्स विच आर इरिवर्सिबल, एक बार हो गई तो हो गई। स्लीप आती है, जाती है। नाउ इफ वी थिंक अबाउट, जितने भी स्पीशीज है इस दुनिया में, सब सोते हैं, एक या दो को छोड़ के सब सोते हैं। अगर स्लीप जरूरी नहीं होती, जो भी चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, एवोल्यूशन में जैसे जैसे हमारे जो हमारे जो स्पीशीज आगे बढ़े हैं वो चली जाती है, क्योंकि नेचर ने ऐसा किया है, आपके लिए ये जरूरी नहीं है, हम उसको निकाल देंगे। लेकिन स्लीप तब से है, जब से ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में आए हैं। सो ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज, दो सिर्फ हम डिलिबरेटली अपने आप को नींद से डिप्राइव करते हैं। सिर्फ हम ही हैं जो पार्टी करने के लिए, टीवी देखने के लिए, काम करने के लिए अपने स्लीप को कट डाउन करते हैं। कोई भी दूसरा स्पीशीज ऐसा नहीं करता है। कभी कभी कोई रीजन भी नहीं होता, फिर भी हम अपनी स्लीप को डिप्राइव करते हैं। अगर हम सोचे, स्लीप इज अ रियली रियली कॉम्प्लेक्स स्टेट कंपेयर टू वेकफुलनेस। हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही है, लेकिन हमारा ब्रेन इज वेरी वेरी एक्टिव। बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे ब्रेन में उस टाइम पे। हमें ऐसा लगता है कि हम आंख बंद करके सो रहे हैं, दुनिया से अलग हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा ब्रेन इतना काम कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च स्टडीज दिखाते हैं the energy that is used at night during sleep is comparable, if not more, to some of the waking states. So unless आप एक्सरसाइज कर रहे हो, so relaxed wakefulness, जब आप उठे हुए हो, उस टाइम जो एनर्जी यूज होती है, वो एनर्जी स्लीप के कंपैरिजन में कम होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल। जब हम बोलते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल स्लीप, मैं यूजुअली ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जब जिस तरह से हमारे जूतों का साइज सेम नहीं होता, हर 40 ईयर ओल्ड या हर 35 ईयर ओल्ड के जूतों का साइज सेम नहीं होता, उसी तरह से हर इंसान के स्लीप का नॉर्मल अलग होता है। इसीलिए मैं उसको नॉर्मल स्लीप नहीं बोलती हूँ, मैं उसको एवरेज स्लीप बोलती हूँ। सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन हु इज एन अडल्ट, एक अडल्ट जो 18 ईयर्स एंड ओल्डर है, उसके लिए एवरेज स्लीप इज एनीवेयर between 7 to 9 hours. अब आपको ये ढूंढना है कि आपका नॉर्मल क्या है, आपका एवरेज क्या है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा नॉर्मल क्या है? आपका नॉर्मल वो है जो जितनी स्लीप आपको चाहिए रात में सोने के लिए, सुबह उठने के बाद रेस्टेड फील करने के लिए, और आपके जो दिन की एक्टिविटीज है वो करने के लिए। सो अ नॉर्मल स्लीप फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल is the amount of sleep that you need to feel rested when you get up in the morning and to do your daily activities. So हर किसी के एज में अलग नॉर्मल होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे ये स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा जैसा कि क्षितिज ने बोला था, आई डू पीडियाट्रिक स्लीप। हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक 0 से 26 और मेरा अप टू 40 भी जाता है, सो वी कैन स्टिल कंसिडर आवर सेल्फ पीडियाट्रिक्स। बट द रीजन मैं ये स्लाइड दिखाती हूँ बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे की स्लीप नॉर्मल है, वो बच्चा 10 साल का है और उसको 8 आवर्स की स्लीप मिल रही है। आपको ऐसा लगता है कि अडल्ट्स में 7 to 9 आवर्स की स्लीप नॉर्मल है, आपके बच्चों को तो 8 मिल रही है, बट एक्चुअली दैट इज अंडर स्लीपिंग, बिकॉज इन दैट एज ग्रुप द नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्लीप इज 10 to 12 hours. So you're actually sleep deprived even though you're thinking that you are getting enough sleep. So इसीलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आपके एज ग्रुप की एवरेज स्लीप क्या है और क्या आप उसमें फॉल करते हैं, और फिर अपना नॉर्मल ढूंढना है। So दूसरी चीज that I like to talk about when it comes to sleep is different stages of sleep. So जब हम सोते हैं रात में, when we fall asleep, we go into this roller coaster of different stages of sleep. हम छोटे छोटे चंक्स में अलग अलग स्टेज में जाते हैं।
कुछ स्टेज होता है जो लाइटर स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है, जिसको हम N1 बोलते हैं, फिर N2। तो ड्रीम स्लीप है, वो रेम स्लीप है। तो पूरी रात में हम ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के चंक्स में इन सारे साइकिल्स में घूमते रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। अब ज़रूरी इसलिए है कि क्यों हम जाने ये स्टेजेस ऑफ स्लीप, क्योंकि जो डीप स्लीप होती है उसमें मसल रिकवरी, ग्रोथ हार्मोन और इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो अगर आपको इनफ स्लीप नहीं मिल रही है, तो पहले कुछ दिनों में जब आप अपने स्लीप को कट शॉर्ट करते हो, तो आपकी जो ये डीप स्लीप होती है वो कट होती जाती है। सो इफ यू कैन थिंक व्हाई यू माइट गेट मोर muscle inflammation, which is very important in myositis. You will get, a decreased immunity again, which is very important in myositis because we need that immunity. And अगर आप बहुत टाइम तक अपने ड्रीम स्लीप को कट बैक कर रहे हैं, तो आपकी रेम स्लीप कट हो जाती है। नाउ रेम स्लीप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन, हमारी याददाश्त, हमारे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी लगती है उसको जब हम दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, तो जब आपको रेम स्लीप आपकी कट शॉर्ट हो जाती है, वो जो आपकी एक क्षमता होती है टू कंसोलिडेट योर मेमोरी, वो कम होती जाती है। So that is why it's really important to see, are you getting into all these different stages of sleep? So another thing जो हम नींद के बारे में जानना, जो अच्छा नींद के बारे में जानना चाहिए हमें, वो है हर हमारे बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है, एक आंतरिक घड़ी जिसको बोलते हैं इंटरनल बॉडी क्लॉक। एवरी सिंगल सेल, बॉडी के हर सेल में एक अपना क्लॉक है, जिस पे एक मास्टर क्लॉक बैठा हुआ है, वो उसको कंट्रोल करता है। सो द मास्टर क्लॉक कंट्रोल्स एवरीथिंग। नाउ नॉट ओनली डज दिस मास्टर क्लॉक कंट्रोल आवर स्लीप, बट इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर रेगुलेशन, कब हमें भूख लगती है, कब हमें नहीं लगती है, एंड हॉर्मोन्स का होना। So if you think about it, whenever our internal body clock is offset, so आपका body clock अगर रात में सोने वाला और दिन में उठने वाला है, और आप रात भर जगे रहते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, तो नॉट ओनली आपकी याददाश्त पे, आपकी नींद पे फ़र्क पड़ेगा, बट आपके हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ेगा। आपको ज़्यादा भूख लगेगी। नॉट ओनली ज़्यादा भूख लगेगी, बट द काइंड ऑफ फूड वी ईट, वी वांट टू ईट high calorie food, snack, non-healthy food whenever we are sleep deprived. So ये सब चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। अब एक चीज़ जो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो बॉडी का इंटरनल क्लॉक है, वो 24 आवर्स से थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा होता है। अगर आप हमारी घड़ी देखेंगे तो वो 24 आवर्स की होती है। इसीलिए जब आप रात में उठते हैं तो ज़्यादा देर तक उठा रहना ज़्यादा ईज़ी होता है, एज़ अपोज़्ड टू थोड़ा जल्दी सो जाते हैं आज, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पर अगर आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी, 2 घंटे ज़्यादा उठने हैं, तो वो ईज़ी होता है। नाउ इन 2 चीज़ों का जो तालमेल होता है, हमारी बॉडी क्लॉक और हम कितनी देर तक हम उठे रहे हैं, that actually controls how much and when we sleep. So now आप अगर ये सोचेंगे कि अगर आप सुबह उठे 7 बजे और रात में 8 बजे आप सोने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करने के लिए, सो यू हैव अराउंड 13 आवर्स ऑफ वेकफुलनेस। सो एक उसको एक रबर बैंड की तरह सोचिए। आपको अपने स्लीप की जो प्रेशर है, उसका रबर बैंड इतना टाइट करना है कि अगर आप 15-20 मिनट भी ज़्यादा उठे रहे, तो आप स्नैप कर जाएँगे स्लीप में। अब क्या होता है कि अगर आपने दिन में बहुत सारे नैप ले लिए, या फिर आपको लगा कि मैं तो आज बहुत टायर्ड हूँ, मैं 9 बजे की जगह आज 6 o'clock को सोने चला जाऊँगा। आपका वो स्लीप रबर बैंड तो बिल्कुल ढीला है, वो प्रेशर एकदम ढीला है, तो नींद नहीं आएगी। Now what that does is actually gives your brain the signal that I want to sleep but I am not sleepy, so वो उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। Now the one thing that is important here is एक केमिकल होता है, जैसा-जैसा हम उठे रहते हैं दिन में, वो केमिकल एडेनोसिन बोलते हैं उसको, वो अपनी बॉडी में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब वो एडेनोसिन एक पीक लेवल पे पहुँच जाता है और जब हमारी बॉडी रेडी रहती है सोने के लिए, तब हम सोते हैं। कैफ़ीन, किसी भी तरह का कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, टी, उस एडेनोसिन को कम कर देती है। तो इसीलिए जब आप रात में, कुछ लोग जब रात में बहुत देर तक देर में चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो उनको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है।
बहुत लोग क्लेम करते हैं कि नहीं मैं तो चाय पी के भी सो सकता हूँ, बट वो क्वालिटी जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, बिकॉज आपकी जो एडेनोसिन की वो कम तो हो गई पर वो थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं गिरी, लेकिन फिर भी आपकी वो क्वालिटी डिसरप्ट होगी। तो अगर आप रेगुलरली ऐसा कर रहे हैं तो समथिंग टू कंसिडर एंड मे बी चेंज। नाउ जैसा मैंने बोला, स्लीप एक्चुअली प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन से लेके, हार्ट से लेके, लिवर से लेके, मसल्स से लेके, पेन मैनेजमेंट से लेके, हार्मोन से लेके, every single thing is impacted by sleep. As you can see कि myositis में a lot of these organ systems are affected, and so what is it about sleep in myositis? अभी हम थोड़ा सा अपना gears change करके we'll talk specifically about myositis. जैसा कि बहुत सारे लोग I think यहाँ पे इसलिए है because वो उनको myositis है या उसके बारे में जानना चाहते हैं। So मसल रिकवरी, सो मायोसाइटिस में क्या होती है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसके लिए हमारी मसल को रिकवरी करनी पड़ती है, वो इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब भी हम डीप स्लीप में होता है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, ड्यूरिंग डीप स्लीप आवर बॉडी रिलीजेस द केमिकल्स फॉर मसल रिकवरी, और अगर हमें वो डीप स्लीप नहीं मिल रही है, द मसल रिकवरी इज इफेक्टेड, तो वो मसल रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती है। देन इम्यून सिस्टम, सो हमारी बॉडी की जो बीमारी से फाइट करने की शक्ति होती है, इम्यूनिटी, वो एक्चुअली जब आपको एक अच्छी नाइट की स्लीप मिलती है वो सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है, बट मायोसाइटिस में ऑलरेडी वो सिस्टम वीक है, तो आपको वो नींद की पावर को यूज करके अपना जितनी आपके पास इम्यूनिटी है उसको बना के रखना है। नाउ ऑफ कोर्स मायोसाइटिस के पेशेंट्स में क्या होता है, या कोई भी मसल इश्यूज के पेशेंट्स में हमेशा दर्द रहता है बॉडी में, थकान रहती है, उसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड टू फील रेस्टेड एंड हैप्पी व्हेन यू आर अवेक। मतलब हमेशा मूड ऐसा डाउन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और उसके ऊपर आपने अगर स्लीप डेप्रिवेशन ऐड कर दिया तो वो वर्स होती जाती है। जस्ट थिंक अबाउट द टाइम जब आपको 7 घंटे की स्लीप की जगह 4 घंटे उठी, सुबह उठ के आप स्नैप करते हो या गुस्से में रहते हो या हमेशा चिड़चिड़ा, किसी से बात करने का मन नहीं। पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमेशा थकान रहती है, तो और स्लीप भी नहीं मिल रही, तो आपका मूड और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। The last thing that I want to talk about is pain. A lot of patients with myositis have a lot of chronic pain. We know that not only getting good night's sleep helps with pain management, तो अगर आपको अच्छा स्लीप मिला है तो वो पेन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जितना भी पेन आपको है उसको सहने की जो शक्ति होती है, उसको सहने की जो कैपेसिटी होती है, वो एक्चुअली बेटर हो जाती है व्हेन यू गेट अ गुड नाइट स्लीप। सो एक तो होता है कि दर्द कम हो जाना, एक होता है परसेप्शन ऑफ दर्द, जो अगर आपको थोड़ी भी लग रही है तो जब आपको अच्छी स्लीप नहीं मिलती तो ऐसा लगता है ओह कितना दर्द हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आई वांट टू ब्रिंग अप यहाँ पे, कि स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जब हम रात में सोते हैं तो हमारे जो गले के मसल्स या हमारे ब्रीदिंग के जो मसल्स वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और नॉट ओनली कमज़ोर हो जाते हैं पर वो कोलैप्स होने लगते हैं, तो उसकी वजह से रात में सांस ठीक से नहीं आती है, लोग खर्राटे मारते हैं ज़ोर से, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नाउ ये मायोसाइटिस के पेशेंट में एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा आपके पास मोटापा हो। बहुत बार क्या होता है कि आप उतने ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं लेकिन आपके गले में बहुत सारे फैट टिश्यूज हैं। बट मायोसाइटिस के पेशेंट्स में उन सब की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपकी मसल वीकनेस आपके ऊपर गले के मसल्स को, आपके ब्रीदिंग के मसल्स को इम्पैक्ट कर रही है, तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। नाउ जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को इफ इट्स प्रेजेंट, जब वो रहता है और हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं, सो नॉट ओनली आपकी नींद उससे डिस्टर्ब होती है, बट आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, ये सब बीमारियों
का भी ज़्यादा चांसेस हो जाता है। और जैसा कि हम बहुत जानते हैं अच्छे से कि इंडियन एशियन पॉपुलेशन में ऑलरेडी ये सब बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये एक स्पेशल कंसिडरेशन है जो हमें देखना है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप घर में यूजुअली कुछ नहीं कर सकते। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए, किसी स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलिए। यूजुअली वो लोग एक आपको मशीन देंगे जिसके साथ आप सो सकते हैं। सुनने में बहुत डरावना लगता है लेकिन इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ अ मैटर ऑफ हैबिट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ग्लासेस या हियरिंग एड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास नेचुरली नहीं है, ओवर टाइम हम उस यूज्ड टू हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसा लगता है कि अरे मशीन के साथ सोना है, बट ओवर टाइम द बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट एंड द बेनिफिट जो आपको मिलता है एक अच्छी नाइट ऑफ स्लीप फार आउटवेज दैट इनिशियल डिस्कम्फर्ट। सो ये एक सोचने की बात है। Another thing I want to bring up, especially in myositis, is restless legs. Restless legs एक नींद की ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ लोगों को जब वो शाम को सोने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर में बहुत ज़्यादा या तो दर्द है या इचीनेस है या पैर आपको मूव करने की ज़रूरत पड़ती है सोने के लिए। और बहुत सारे लोगों को दिन में भी ऐसा होता है, लेकिन जब वो रात में आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करने लगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। दिन में जब होता है तो वो यूजुअली हैबिट की बात होती है। रात में जब होता है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, बहुत लोगों को नींद नहीं आती जब तक वो पूरे घर के चक्कर ना मारे। सो वो एक बीमारी है जिसको रेस्टलेस लेग्स बोलते हैं। अब मायोसाइटिस में उसका एक स्पेशल प्लेस इसलिए है बिकॉज़ ऑलरेडी आपकी मसल्स में वो इन्फ्लेमेशन है, ऑलरेडी उसमें वो दर्द है एंड इट एक्चुअली कंपाउंड्स द रेस्टलेस लेग्स। इसमें एक्चुअली आप कुछ कर सकते हैं घर में। नंबर 1, द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ रेस्टलेस लेग्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉज़ रेस्टलेस लेग्स का, बहुत सारी थ्योरीज़ है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रूवन थ्योरी वही है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी। इंडियंस में हमें देखा जाता है कि बहुत बार आयरन की कमी होती है, या तो हमारे डाइट, वेजिटेरियन डाइट की वजह से या फिर किसी और की वजह से। तो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द आयरन स्टोर्स इन योर बॉडी एंड स्टार्ट ईटिंग हाई आयरन फूड, this might get better or relieved. Sometimes it doesn't, and then you have to take additional medicines. So वो एक चीज़ है। अदर थिंग्स जो आप कर सकते हैं, एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, एक स्ट्रेचिंग रूटीन, कभी मसाज या फिर गर्म पानी में अपने पैर डालना, थोड़े वार्म वाटर में, टू गिव दैट द लेग्स सम रिलीफ एंड from the sensations of uncomfortable feelings at night. तो ये सब चीज़ें आप घर में थोड़ा कर सकते हैं, बट अगेन अगर आपको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि बस एकदम भी कंट्रोल नहीं होता है और उससे आपकी नींद बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से वहाँ पे बात करिए। The last thing I want to bring up here in the relationship of myositis and insomnia. As you might know, insomnia is a disorder where आप insomnia जो है, आप सोने जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। बहुत बार हमारा दिमाग घूमता रहता है या कुछ-कुछ चीज़ें आती रहती है। बहुत सारी रीजंस है। इंसोम्निया इज द मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर आउट देयर। स्लीप डेप्रिवेशन के बाद इंसोम्निया इज रियली रियली कॉमन। बट अगेन मैं यहाँ पे मायोसाइटिस के पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि इंसोम्निया उनके लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बिकॉज पेन, बहुत बार पेन की वजह से और पेन के डर की वजह से, पेन शायद उतना ना भी हो, पर पेन के डर की वजह से कि पेन आने वाला है या रात में मुझे पेन की वजह से नींद नहीं आएगी, वो हो जाता है। अगेन डिप्रेशन, एंग्जायटी की वजह से बहुत बार इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, आप क्रॉनिक डिजीज़ के साथ रह रहे हैं, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, सो उसकी वजह से। या फिर एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट जो हम यूज़ करते हैं मायोसाइटिस में, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कैन रियली अफेक्ट स्लीप इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, सो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, अभी थोड़े स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम इंसोम्निया या अपनी स्लीप को कैसे घर पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि कैन एटलीस्ट किक स्टार्ट, कि भाई चलो हम ये तो कर सकते हैं टू स्टार्ट आउट, और फिर देखते हैं अगर ठीक नहीं हुआ तो वी विल चेक विथ आवर डॉक्टर। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सबसे पहले, क्या आपकी स्लीप एक प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको आपको मेजर करना है, राइट? कैसे मेजर कर सकते हैं? आस्किंग आवरसेल्व्स अ फ्यू क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ लॉन्ग एंड हाउ इजीली यू फॉल asleep? जब आप सोने जाते हैं तो क्या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? जब मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो उसका मतलब है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा। 15 से 20 मिनट अगर आपको लग रहे हैं सोने के लिए, इट्स यूजुअली इन द नॉर्मल रेंज। अगर उससे ज़्यादा आपको लग रहा है, आधा घंटा, 45 मिनट्स, आप तो यू हैव टू रीथिंक योर स्ट्रैटेजीज।
क्या आप अपने एवरेज से ज़्यादा सो रहे हैं? क्या आपके 12-12 घंटे भी सो रहे हैं? और व्हेन मैं से 12 घंटे सोना मतलब 12 घंटे सोना, 12 घंटे बेड में टाइम बिताना और 12 घंटे सोना अलग चीज़ है। सो वो एक देखना होता है। हाउ मच डू वी टेंड टू ओवरस्लीप ऑन वीकेंड्स और ऑन वेकेशंस? सो जब हम अपने डे टू डे में वर्क करते हैं तो हम 7 घंटे सोते हैं, पर अगर जब हमें छुट्टी मिलती है तो क्या हम 9 घंटे सोने की कोशिश करते हैं? सो वो एक चीज़ है जो हमें देखनी है। ड्राउज़ीनेस ड्यूरिंग द डे, सो जब हम उठे रहते हैं सुबह तो क्या हमें अपने काम पे नींद आ रही है, या फिर ड्राइविंग करते हुए नींद आ रही है, या फिर जैसे ही अपॉर्च्युनिटी मिली किसी ने बोला अच्छा चलो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ आता हूँ, आपने जैसे ही कार में बैठे आप सो गए। सो दीज आर थिंग्स टू थिंक अबाउट। बच्चे बहुत बार स्कूल में सो जाते हैं, सो दीज आर थिंग्स टू थिंक अबाउट। ऑल्सो थिंकिंग अबाउट, अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जिनका हम टेक केयर करते हैं, तो क्या उनकी केयर हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करती है कि आपको बार बार उठना पड़ता है क्योंकि आपका बच्चा रात में ठीक से नहीं सो रहा? क्या आपको बार बार उठना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स हैं एल्डरली घर में जिनकी आपको टेक केयर करनी है, या उनके पास पेन है, या उनको कुछ इश्यू है जिसकी वजह से? सो दोज आर थिंग्स ऑल्सो थिंक अबाउट। एंड देन स्लीप एनवायरनमेंट, क्या आपके पास एक एनवायरनमेंट है जो कि अच्छे स्लीप के लिए कंड्यूसिव है? नेचुरल लाइट एक्सपोजर, कि आपको लाइट एक्सपोजर कितनी मिलती है दिन में और कितना आप उसको कट डाउन करते हैं रात में? यूजुअली and the biggest one here is electronics. We all have electronics, smartphones which are not actually touch smart. रात भर हम देखते हैं, इंक्लूडिंग मी। कभी-कभी मैं भी अपने फ़ोन पे रात में होती हूँ, बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ क्योंकि टाइम डिफरेंस है। सो बट क्या हमारे पास एक प्लान है यूजुअल डेज़ के लिए? क्या हमारा ये एक रेगुलैरिटी है कि हम रात में बहुत टाइम तक अपने फ़ोन पे हैं, या क्या कभी-कभी हम ऐसा कर रहे हैं? सो ये सब चीज़ों को देख के आप अपनी स्लीप हेल्थ के बारे में एक असेसमेंट ले सकते हैं। सो मैं एक-एक करके आई विल गो ओवर एवरी सिंगल पॉइंट वेयर वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी कैन मेक आवर स्लीप बेटर। सबसे पहले तो हमें ऐसा जानना है कि स्लीप इम्पोर्टेंट है और उसको वो इम्पोर्टेंस देनी है। इफ़ यू डोंट गिव इट द इम्पोर्टेंस, वो अपने आप नहीं होगी। इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। कोई भी चीज़ एक हैबिट होती है ह्यूमन्स की, उसको हमें एक हैबिट में लाना है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो हमें इग्नोर करेगा। पर हमें उसको एक इम्पोर्टेंस देनी है जो वो डिज़र्व करता है। हमें अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट, ड्यूरेशन एंड रेगुलैरिटी। जैसा कि मैंने बोला, आपको अपना एवरेज ढूँढना है कि क्या मेरा एवरेज 7 घंटे है कि 8 घंटे है कि 9 घंटे? मोस्ट adults 7.5 hours to 8 hours is usually average. Now, रेगुलैरिटी, दैट मीन्स कि क्या हम सेम टाइम पे सोने जा रहे हैं, क्या हम सेम टाइम पे उठ रहे हैं, एज मच एज पॉसिबल। कभी-कभी हम सब, इतनी चीज़ें होती है, फंक्शंस आ रहे हैं, आप उठे हुए हैं, या कोई पार्टी है या कुछ काम आ रहा है, तो कभी-कभी सबके पास ऐसा होता है कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि एग्ज़ैक्टली सिमिलर स्केड्यूल पे हो। पर क्या आप यूजुअली, जब आपके पास और कुछ है नहीं करने को, तो क्या आपकी स्लीप में वो रेगुलैरिटी है? क्या आपका एक बेड टाइम है? क्या आपका वेक टाइम है? Now, when we think about regularity, even more than going to bed, बेड टाइम से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो वेक टाइम होती है। क्यों होती है ये? जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था, नींद हमें कब आती है? नंबर 1 जब हमारी बॉडी रेडी होती है, वो हमारा सर्केडियन साइकिल। एंड नंबर 2 जब हमारा वो स्लीप का रबर बैंड टाइट होता है। बट वेक अप टाइम इज अननेचुरल। लोग उठा सकते हैं, नॉइज़ेज़ उठा सकती हैं, खाने के लिए उठ सकते हो, किसी से मिलने के लिए उठ सकते हो। वेक अप टाइम इज़ अननेचुरल। वेक अप टाइम जब आप अननेचुरल को कंट्रोल करते हो तो नेचुरल अपने आप कंट्रोल होते थे। सो इसीलिए इफ यू वर टू टेक वन थिंग फ्रॉम दिस टॉक विल बी टू सेट अ वेक अप टाइम every single day which is consistent, and the bedtime would start to take care of itself. So एक चीज़ जो आप कुछ भी याद मत रखिए इस टॉक से, सिर्फ़ ये याद रखिए कि आपको ये कोशिश करना है कि जब आप सुबह उठे, तो आप विदिन 30 मिनट्स टू एन आवर, 7 बजे आप रोज़ उठ रहे हैं, तो 8 बजे से ज़्यादा नहीं सोएँ। अगर आप 8 बजे से ज़्यादा 8 बजे उठ रहे हैं, तो 9 बजे, सो विदिन दैट आवर, 1 घंटे के इधर-उधर आपको वो वेक अप टाइम कंसिस्टेंट रखना है। सेकंड थिंग, प्री स्लीप रूटीन, मेकिंग श्योर कि हमारा जो बेडरूम का एनवायरनमेंट है वो डार्क हो। कभी-कभी कुछ लोगों को
एक वार्म शावर लेने से, जैसे रात में एक वार्म शावर या वार्म बाथ लेने से अच्छी नींद आती है। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो हो सकता है कि गर्मी के महीनों में वो वार्म शावर अच्छा ना लगे, तो उस सिचुएशन में आप एक स्ट्रेचिंग रूटीन या फिर मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो सब कर सकते हैं। अगेन, जो आपको लगता है आपके लिए हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत लोगों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मे बी टू मच, इतना टाइम नहीं लग रहा है। इवन दो अगर आप 5 मिनट भी अपने बॉडी को देते हैं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हेल्प करेगी। नाउ अपने इन्वायरमेंट को एक स्लीप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना, मतलब मेकिंग श्योर दैट अगर गर्मी है तो पंखा चल रहा हो, या फिर क्योंकि हर किसी के पास एसी या कूलर नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट पंखा चला सकते हैं या खिड़कियां खोल सकते हैं, या देखना कि क्या वो इन्वायरमेंट है जिससे आपकी स्लीप बेटर हो सकती है। यूजुअली जो हमने स्टडीज में देखा है, रिसर्च में देखा है, कि अगर आपका बेडरूम थोड़ा सा ठंडा है और आप उसके ऊपर एक थोड़ा वार्म चादर पहन रहे, तो दैट इज बेटर फॉर स्लीप एज अपोज टू घर को पूरा गर्म करके रखना। नाउ इंडिया में वो इतना प्रॉब्लम इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हीटर नहीं चलते यूजुअली बहुत सारे एरियाज में, बिकॉज बहुत गर्मी होती है। बट यूएस में ये काफी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम हमेशा हीटर चला के रखते हैं, तो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। बट इंडिया में क्योंकि गर्मी होती है, तो आप उसको देखिए कि कैसा थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, क्या आप फैन चला सकते हैं, क्या आप कुछ और कर सकते हैं जिससे आपका रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके रूम में बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है रात में, तो उसमें एक मोटा पर्दा लगाना या थिक कर्टन, ब्लैकआउट कर्टन्स जिसको बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक स्लीप मास्क जो कि आप इजीली ले सकते हैं मार्केट से, वो आप पहन सकते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब शाम को अंधेरा होता है तो वी टर्न ऑन ऑल द लाइट्स, बिकॉज हमें पूरी रोशनी चाहिए घर में। Now, what that does is actually decreases the chemical, जो मेलेटोनिन केमिकल होती है हमारी ब्रेन में, जो बढ़ती जाती है रात में, वो इट्स अ केमिकल ऑफ डार्कनेस। नाउ मेलेटोनिन हेल्प्स यू स्लीप। रात हो रही है, डार्क हो रही है, द मेलेटोनिन वांट्स टू इंक्रीज, बट आपने अपने घर की पूरी लाइटें जला दी बिकॉज आपको रोशनी चाहिए, क्योंकि बाहर अंधेरा है, तो मेलेटोनिन का लेवल गिर गया, तो ऑफ कोर्स आपको सोने में प्रॉब्लम होगी। तो यूजुअली जब हम बात करते हैं लाइट की, हम हमेशा बात करते हैं सेल फोन्स की, टीवी की, कि उसको बंद करो, उसकी लाइट को बंद करो, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे आसपास द एम्बियंट लाइट in our environment, are we toning it down? So as opposed to turning our lights up, we should be turning it down at around the evening or bedtime. Now, अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो you can have a focus lights that's focusing on the work as opposed to on your face. So वो उस किताब के ऊपर या कॉपी के ऊपर या जो भी आप काम कर रहे हैं उस वर्क के ऊपर लाइट डालिए, ना कि अपने फेस पे। Now again, comfortable pillows, breathable sheets, cotton की sheets, because again आपको ऐसा चाहिए कि ज्यादा गर्मी ना प्रोड्यूस हो जब आप सोने जा रहे हैं। फोर्थ, जो प्रोटेक्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग स्लीप टाइम, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स को बोलना कि दिस इज माय स्लीप टाइम, मैं इस पे सोने जाने वाला हूँ, प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी इन द मिडल ऑफ द नाइट। आपको अगर जरूरी काम है तो आप श्योर कॉल करिए, बट अगर आपको सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज भेजना है या कुछ बताना है जो कि कल तक रुक सकता है, तो प्लीज, सो अगेन यू हैव टू बी इन चार्ज ऑफ योर ओन स्लीप एंड प्रोटेक्टिंग योर ओन स्लीप। ये सब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मायोसाइटिस के पेशेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू स्लीप व्हेन इन मायोसाइटिस। ऑल्सो हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान, सो ऐसा नहीं है कि आपको शाम को ही अपना फोन बंद कर देना है। आजकल अ लॉट ऑफ वर्क गेट्स हैपन ऑन द फोन और कंप्यूटर। 30 minutes, 45 minutes, उससे पहले just 30 to 40, so that your brain gets a chance to relax, rewind, think about, the day. So अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी दिन कि आपको लेट तक काम करना है, तो जो ब्लू लाइट फिल्टर्स होते हैं मोस्ट फोन्स, उसमें आजकल एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है, वो डाल दीजिए, ताकि जो ब्राइट लाइट है वो आपके फेस पे ना पड़ रही हो। नाउ ये तो सब थी बेड टाइम की बात है, दिन में हम कुछ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। सो अगेन, सबसे पहले वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे, देन एक्सरसाइजिंग। आपको हैवी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ शॉर्ट वॉक, बिकॉज जब आप सुबह वॉक करते हैं तो नॉट ओनली योर ब्रेन इज गेटिंग एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द वॉक, आपकी ब्रेन जगता जाता है, बट ऑल्सो वो जो नेचुरल लाइट सूरज की हमारी बॉडी पे पड़ती है, वो जो केमिकल था जो रात में बढ़ रहा था अंधेरे में, वो कम होगा। So the natural light is the strongest inhibitor of melatonin.
सो जब वो मेलेटोनिन जब वो मेलेटोनिन पे वो लाइट पड़ती है, दैट मेलेटोनिन गोज डाउन, यू फील मोर अलर्ट, यू फील मोर अवेक. नाउ रात में वो लाइट को कम करना, शाम को कम करना, और सुबह अगर आपके घर में लाइट है तो श्योर प्लीज टर्न इट ऑन. सुबह के टाइम आप ज्यादा लाइट चलाएं जब आप पहले उठते हैं, बिकॉज आपको वो मेलेटोनिन को बिल्कुल कम कर देना है. नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर मायोसाइटिस पेशेंट्स कि अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो देखिए आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आपके मसल्स पे ना पड़ रही हो. यू डोंट वांट टू ओवर स्ट्रेन योर मसल्स, यू वांट टू ग्रेजुअली ट्रेन देम फॉर एक्सरसाइज एज अपोज टू डूइंग इट कि आज मैंने ये टॉक सुनी है और कल मैं 4 घंटे एक्सरसाइज करूंगा. नहीं, आपको धीरे धीरे वो बिल्डअप करना है. So, we are coming to the end of this talk. So I just want to say here that, your journey with myositis is not defined by the challenges you face, but by your strength in navigating them. उसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत challenges हैं, पर क्या हम कुछ ऐसे powers ले सकते हैं जिससे हम उन challenges को overcome कर सकते हैं. और sleep actually एक वो ऐसी चीज है जिससे आप कर सकते हैं. बहुत ही छोटी चीज लगती है, अगर छोटे छोटे स्टेप्स आपको, जो मैंने आज बात की, आपको सब नहीं कर देना एक दिन, क्योंकि होगा नहीं, ऐसे हैबिट नहीं बनेगी. आपको एक चीज देखना है कि इस महीने में इस एक चीज पे फोकस करूंगा या करूंगी और उसको मैं टेक केयर करूंगी. फाइंडिंग द राइट ट्रीटमेंट्स एंड गिव योरसेल्फ सम लीवे. ठीक है, आज मैं एक्स्ट्रा सो गई. स्लीप इज नेवर अबाउट द लास्ट नाइट. वो नाइट चली गई है, आपको अगली नाइट पे फोकस करना है और अगली नाइट पे फोकस करना है और अगली नाइट पे. इट्स लाइक अ मैराथन. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू टुडे. यू हैव टू वर्क ऑन इट ग्रेजुअली. नाउ बहुत बार ये कुछ भी काम नहीं करता. उस टाइम आप अपने डॉक्टर से बात करिए एंड देन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मेडिकेशंस. बहुत सारे स्लीप के मेडिकेशंस होती है. देयर आर एब्सोल्युटली नो मेडिकेशंस जिसके ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेडिसिन इतनी सेफ है कि इसकी लाइफ में कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. हर मेडिसिन की साइड इफेक्ट है. किसकी साइड इफेक्ट नहीं है? टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टीवी बंद करना, उन सब की साइड इफेक्ट नहीं है. बट हर मेडिसिन की साइड इफेक्ट है. कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को एक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं. बहुत बार क्या होता है कि हम रात में जब शराब पीते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद अच्छी आ रही है. क्यों लगता है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो सेम ही रिसेप्टर्स पे वर्क करती है जिस पे हमें हमारी स्लीप वर्क करती है, और कुछ ये मेडिसिन वर्क करती है. बट उसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो 2 घंटे में वो इफेक्ट चला जाता है. और अगर आपके कुछ भी मसल वीकनेस है मायोसाइटिस की वजह से या किसी भी और वजह से, वो वीकनेस ज्यादा बढ़ जाती है और स्लीप एपनिया बहुत हो जाता है. तो अल्टीमेटली आपको मिला कुछ भी नहीं. आपको हाँ शायद वो नींद आ गई, बट ना वो उसकी क्वालिटी मिली, ना उसका ठहराव मिला, सो ना उसकी ड्यूरेशन मिली, ना उसकी क्वालिटी मिली. सो डेफिनेटली नो नो नो. नाउ कैफीन, चाय, कॉफी आप स्ट्रेटेजिकली यूज करिए. सुबह उठ के पीजिए, मे बी आफ्टरनून, जब वो आफ्टरनून स्लम्प होता है तब लीजिए, बट नॉट टू लेट एट नाइट. एंड देन डेफिनेटली पेन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, स्पेसिफिकली मायोसाइटिस में फॉर स्लीप. अगर आपको दर्द है तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद आने में परेशानी होगी. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉमन स्लीप मिथ्स. यहाँ पे कुछ ऐसी जो हमारी धारणाएं बन जाती है, क्या वो सही है नहीं है. और आई थिंक मैंने इन सब पे अभी टच बेस किया है, बट आई जस्ट वांट टू गो ओवर वन आफ्टर द अदर. एवरीवन नीड्स 8 hours ऑफ स्लीप. जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है आपको 8 ना, हो सकता है आप लकी हो, आपको 7 घंटे में काम चल जाए. अभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा नॉर्मल 8 घंटा है, बट मेरा नॉर्मल है 7 hours. I go to sleep and I try to sleep for 8 hours, but body को तो 7 hours ही चाहिए. तो उससे क्या होता है, आपको लगता है कि यार मैंने तो 8 घंटे का सोचा था, मुझे तो 7 ही घंटे की नींद आ रही है. So then your brain just like constantly starts thinking that why am I not sleeping? But that is not even the need of your body. So then that leads to frustration and that leads to disrupt sleep. So figuring out your normal. Are you rested after 7 hours? क्या आप 7 घंटे के बाद rested feel कर रहे हैं? Sure. That probably is your normal. You can catch up on sleep. कि मैं बाद में आज मैं 5 घंटे सो जाता हूँ, कल 10 सो जाऊंगा. It doesn't work like that. Even though मैंने बोला कि sleep is always about the next night and the next night. जो हो गया वो हो गया, but आप उसको कभी भी मेकअप नहीं कर सकते. जो lost है वो lost हो गया.
आगे के लॉस प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन पीछे का लॉस कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमने जस्ट देखा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल हेल्प्स यू स्लीप, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि क्यों शराब पीना स्लीप प्रोड्यूस करेगा पर उसको मेंटेन नहीं करेगा और उसकी हैबिट्स। सो अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो हैप्पी आवर जो शाम को पीना एज अपोज टू late night drinking. Napping is for the lazy. Now, this is very, very important in myositis patients. Sometimes एक छोटा 20 to 30 मिनट का नैप जो है आपकी बॉडी को वो रेस्टोरेशन दे देता है जो कि आपको रात की स्लीप के बाद चाहिए होती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा थकान, इतनी ज़्यादा फटीग या पेन मिलता है। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम नैप करते हैं तो ज़्यादा लंबा नैप ना करें, बिकॉज उससे वो जो रबर बैंड का मैंने बात की थी वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो अगर आप 20 to 30 मिनट्स के विंडो में रख रहे हैं तो तब क्या होता है कि सिर्फ वो डीप स्लीप जो मैंने बात की थी, जो मसल रिकवरी में ज़रूरत है, जब आप छोटा सा नैप लेते हैं तो आप डीप स्लीप में जाने की कोशिश करते हैं और रिकवरी होती है। आपको जल्दी से उससे निकलना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो आप ज़्यादा सोएंगे। बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे मैंने 2 घंटे सोया फिर भी मुझे और टायर्ड लग रहा है। दैट इज बिकॉज यू ओवरस्लेप्ट दैट टाइम इन द आफ्टरनून। सो ये ध्यान रखना है। तो 20 मिनट्स का नैप, 15 मिनट का नैप, वो जो पावर नैप बोलते हैं या आफ्टरनून सिएस्टा बोलते हैं यूरोप में, दैट इज ओके। स्लीपिंग पिल्स आर सेफ long-term solution. Like I said, there are no sleeping pills, sleeping medications in the world that do not have side effects. Every single one has side effects. Eighth myth, you can train yourself to need less sleep. जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है, आप नहीं ट्रेन कर सकते हैं आपकी बॉडी को। इवन दो समटाइम्स जब हम बहुत लोग जो होते हैं जिनको कम ही स्लीप की जरूरत पड़ती है, दे फील वेरी प्राउड कि मैं तो 5 घंटे की स्लीप में ओके हो जाता है। It's not something to be proud about. You have to get the amount of sleep that your body needs. You cannot train your body to get less sleep. जो आपकी नीड है वो है, कभी ना कभी it will come back to bite you. Myth, watching TV before bed helps your sleep. Again, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे टाइम वो लाइट होती है। बहुत बार क्या होता है कि हम रात में न्यूज़ सुनते हैं या ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाती है एंड कैन लीड टू एंजाइटी। सो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। अगर आप कुछ लोग होता है जिनको जब वो रात में चाहते हैं कुछ चाहिए जो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं या फिर टीवी का अगेन वो जो लाइट है वो इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, उसको नाइट मोड पे डाल दीजिए, टीवी थोड़ा दूर, बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा दूर। तो कुछ ऐसी रिलैक्सिंग चीज़ें जो आपको सोने में हेल्प करे एज अपोज टू लिसनिंग टू द न्यूज़, बिकॉज फ्रीक्वेंटली न्यूज़ पे कभी भी कुछ अच्छी बातें नहीं आएंगी। And just because our news media is these days, we are always, looking for controversies. And the last myth is if you wake up at night, you are not sleeping well. हर कोई, like I said, जब हम सोते हैं तो हम ये different cycles के रोलर कोस्टर में जाते हैं। इन बिटवीन दो साइकिल्स हर 2-3 घंटे में ब्रेन हमारा उठता है और अपने आप ही सो जाता है। तो रात में उठना इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आप उठ के विद इन 10 मिनट सो जा रहे हैं, इट इज अ नॉर्मल फिनोमिना, इट्स ओके अगर आप उठ जा रहे हैं। पर अगर आप उठ के बहुत देर तक उठे रह रहे हैं या उठ के बार बार बाथरूम जा रहे हैं या उठ के आपका माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स नहीं है और आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है या आप दर्द की वजह से उठ रहे हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल। So that was our last slide, and I just want to say in the end कि sleep हमारे lifestyle की एक luxury नहीं है, it's a non-negotiable biological need of our body, and there is no one size that fits all. हर किसी का sleep cycle, हर किसी की sleep needs अलग है। So like I said, आप अपना normal figure out करिए और फिर figure out करिए कि क्या मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, क्या छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे प्रिवेंट करेंगी कि आगे जाके मुझे स्लीप मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या हम अभी से ऑलरेडी, नेवर टू लेट, क्या हम आज से अभी से एक चीज़, 2 चीज़ें, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग एट वन्स, यू जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड फिगर आउट कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा स्लीप बेहतर हो सके। So thank you so much, and I can take questions अगर chat में कोई questions हैं या और कुछ questions है। I think
There's one question. It's Mr. Chintan Shinde. He's asked, does sleep quality affect reflux? Reflux? Yeah, reflux. So I wouldn't say कि sleep quality affect reflux, but reflux definitely affects sleep quality. So things that you can do, make sure that whenever you're eating late at night, not eating too late, not eating a heavy meal, and maybe like walking around for 5-10 minutes after your meal will help you digest. Because definitely if you're eating a heavy meal that will make you prone to reflux, that will affect your sleep quality. So there's another question, Parth. Yeah, I Mr. missed the beginning of the Sankhya. talk. Go ahead, Parth. Yeah. So he missed the beginning of the talk. He mentioned about how many hours of deep sleep helps in muscle recovery. So could you please go again? So there is no data about how many hours. किसी को शायद total. So, it's not about the deep sleep duration, but it's about how much deep sleep your body needs. So जैसा कि मैंने बोला था, we have chunks of around 2 to 3 hours in which we go through cycles. So light sleep, deep sleep, REM sleep, right sleep, deep sleep, REM sleep. So every 2 hours, we actually go into deep sleep. And around 30%, 25 to 30% of our sleep is actually deep sleep. So अगर आपका 7 hours है, so उसका जो 25-30% होता है, that is your deep sleep. So that is the amount of deep sleep you need for muscle recovery. And sometimes even just taking that little nap also helps with the muscle recovery. But on an average, Deepa, you said that 7 to 9 hours on an average for adults. 7 to 9 hours total. The deep Okay. sleep, which the question was, 20 to 25% of the total. 25 to 30% of the total is the deep sleep, which aids in muscle recovery. So But we don't control the deep sleep. We can only control the total sleep. We cannot control the deep sleep. Yes, that is true. So basically, we should sleep for 7 to 9 hours. That will give us enough deep sleep. Enough sleep. And when we start sleep depriving ourselves, if we cut short on our sleep, the first one to go out of the window is the deep sleep. It's not the light sleep, it's not the REM sleep, it's the deep sleep. So that's very important. So if you sleep 1 hour less, you're actually cutting down your deep sleep 1 hour less. 1 hour less, yes. Okay. Parth, there is There's another one more question. Yeah, this is from Mr. Prashant. He says that when I was on a steroid, I used to sleep less than 4 hours, but now I'm sleeping 9+ hours at night and 2+ hours in a day. How can I manage my day sleep? And he's asking if it's the effect of recovery phase or something else. So that's a great question. So sometimes there is this rebound hypersomnia that happens after discontinuation of steroids, where the body just goes into this pattern of, requiring more sleep. Or what can happen sometimes with steroids is there is weight gain associated with steroids. And that can cause obstructive sleep apnea, or, it can cause other sort of sleep disturbance. So that is something to, maybe talk to your doctor if you're really suddenly requiring 9+2. So agar 9 hours in the day and 2 hours, 9 hours at night and 2 hours in a day, that is 11 hours. That is clearly outside the average for an adult. So that is something that should be taken to your physician and maybe look into that a little further. Deepa, I hope that answered one your question. question. Sorry, Yes, sir. Parth, I have one No, go ahead, question sir. that a lot of my patients ask. What happens in myositis is they get fatigued, right? So because their muscles are weak, so that's anything they do after that, they're fatigued. So one of the common question is that when I'm really fatigued, I feel like, passing out or sleep. But that would mean, multiple episodes of short sleeps. Would that be recommended, or rather fight it out and sleep at the right time and the right, that's during the day I'm talking about? Yes. So I would say that human beings in general are not meant for what you're describing. It's called polyphasic sleep. That means we have a big chunk
at night, and then we don't even have a big chunk at night. Chote phases mein, there are studies that there are a lot of people who sleep like that, but actually that's not how the human body is generations. It's because of all the things that we have been accustomed to. We are not used to sleeping in short chunks throughout the day. So in those people, I would recommend that plan your day so that you can sneak in a scheduled 15-minute nap, maybe in the early morning. So agar aap 7 o'clock uthe, to maybe around 10 o'clock, almost like children, 10 o'clock ek chota 15 minute, and then around 1 or 2 o'clock ek chota 15 minute, because you don't want to do too much also, because remember that sleep rubber band that I was talking about, you want it to be tight. When you start taking a lot of nap, that rubber band becomes a little lax, and then the night sleep is affected. So rather than, falling asleep here and there, just schedule कि मुझे पता है कि आज मेरा ये दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है. I am going to take one nap at 10:30 and put an alarm for 10:45 and get up, and then take another nap at 1:30 or 1 o'clock, and then go through the rest of the day. So night sleep is very important. So you don't want to Night sleep compromise is night sleep. important Okay. for most people. All right. Okay, there were a few more questions. Mr. Rajveer Singh Mala, could you please repeat your question, sir? It says it is better to take SU in the meal. Yeah, maybe we can skip to the next question in the meantime. Okay. I'm The on steroids. next- Yeah, go ahead. Mhm. Go ahead, Parth. So Mr. Sidra is saying that he's on steroids and he feels sleepy during daytime. Is that okay? There are a lot of reasons why you can feel tired and sleepy due to steroids. Now, by having myositis, you usually feel sleepy, but also, like I mentioned, steroids can actually cause a lot of disruption to your sleep quality. It can cause weight gain that can cause, obstructive sleep apnea. So whenever you are on the steroids, you want to make sure that you get an evaluation so that we don't just say that, oh, it's because of steroids. Can we do anything about it? Yeah, can you take the steroids a little bit earlier in the evening, or instead of the night, can you take it during the day so that it doesn't? Sometimes doing those little changes, but always talking to your physician before changing your medication regimen can be helpful. So steroids can definitely affect the quality of sleep. He's following up with that. Even after doing exercises, I feel sleepy. Yeah. So there are, like I had discussed before, there are a lot of causes of sleepiness. Either you're not getting enough sleep, or like you mentioned, you are on steroids. So, seeing, can you maybe get an evaluation of your sleep and see, is there something that you can do for your specific case that can help you feel rested? And in all fairness, sometimes a lot of people do need extra support with medications. And in that cases, we do give medications. If you're feeling tired enough that you cannot even perform your daily activities, if you are working, if you are, doing your household work, if you cannot do your daily activities and you're that sleepy. Now, I just want to distinguish sleepiness from fatigue here. Fatigue is tired hona, and sleepiness is the ability to fall. Fall asleep. They are two different things. A lot of people feel tired all the time, but you're truly sleepy when you are giving the opportunity and said, hey, go ahead and sleep, and you can fall asleep. So say, for example, I will get up in the morning and just complain कि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, पर कोई मुझे बोला, sure, तेरे पास 2 घंटे हैं, जा सो जा. If I can fall asleep, I am sleepy. That might not be normal. But if I cannot fall asleep, I am tired. That is not sleepiness. So it's always important to distinguish these two things, because a lot of people overlap the sleep and fatigue. मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमें नींद आ रही है, पर क्या आपको actually नींद आएगी अगर आपको बोला जाए कि हाँ आपके पास है 4 घंटे, आप सो जाओ. So that is something to think about and distinguish. Okay, there was one more question, more of a statement. She says that Miss Priyanka says it's very difficult for her to fall asleep. It takes a lot of time for her to fall asleep. So maybe some pointers on that. Yeah, so again, a few reasons that, a lot of things that we talked about, why you can have a lot of time to take a lot of time to fall asleep. A lot of times it is about not knowing your normal. हमें ऐसा लगता है हमारे पास 9 घंटे हैं, चलो आज मैं 9 घंटे सोऊंगी.
but your body really needs only 7 hours. So you have those extra 2 hours that you're trying to sleep, but the body is not sleeping. So सबसे first वो step होता है. But then of course there is insomnia. A lot of people have inherent insomnia. They have genetic insomnia. It runs in the family, just like high blood pressure and diabetes. Actually, insomnia runs in the family. Some people just have a natural tendency. उनकी नानी को भी था, उनकी नानी के नानी को भी था, उनके पापा को भी था. So that is something to think about and get evaluated. अगर आपने वो सब चीजें कर ली है जो we talked about in this talk. Okay. This was a follow-up question. So we had a question about the diet. So the question is like mostly like what kind of food is better for sleep? Is there any specific food that we should consume? Sure, we can talk about that. And a lot of times eating a lighter, healthier meal, so more salads and fruit, keeping your diet light is the most important. Having said that, कुछ चीजें, कुछ foods ऐसा है जो कि आप खा सकते हैं रात में, जिसमें people claim that they are natural melatonin. So berries हो गए, banana हो गए, those are things that can actually help you fall asleep. Sometimes nuts, walnuts have a lot of natural sleep promoting chemicals. So that is something to think about. And we can probably take the last question since it's 10 Okay, o'clock. Right. So I think we have the last question here. So the patient is saying that his usual average time of sleep is 6 hours. And he feels refreshed and energetic in the morning. So is that okay, or should he work on it? Because we mentioned it was 7 to 9 hours for a normal human. Yes. And the general rule in medicine is what is not broken, you don't fix it. If you are feeling, so when I said the average was 7 to 9 hours, there are a lot of people whose average is 6.5. There are a lot of people whose average is 9.5, 10. So, you might be in that lucky group that only needs 6 hours. So if you are feeling rested, you don't have any issues, you are able to carry out your day during the, daily activities, you don't have to fix it. I think we've answered a lot of questions. This was a pretty good session. So, did you want to take over? Yeah, Sure. I mean, I just Yes. wanted to thank Deepa, for the talk, and yeah, we should close it. It's already 10 o'clock, but here at least. Thank you very much, Deepa. Parth, let's close. Yes, Ashish is going Thank to you take so over. much. Yeah. Sure. Oh, Bye-bye. Kshitij, go ahead. Thank you so much, ma'am. This was really insightful, and I'm sure it helped our patients a lot. I think a lot of their questions were asked, and I think it was something that definitely needed to be talked about. So thank you so much for doing this and taking time out for us. It's my pleasure. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Likewise.